Good morning, students. Today's topic is moment of inertia of a thin spherical shell. As we have already done moment of inertia for a cylindrical body, तो spherical shell के लिए same वैसे ही proceed करेंगे. Here वही पहले we will consider along the diameter and then for the tangent. इसके लिए सबसे पहले एक spherical shell consider करते हैं, ठीक है, with a plane section ABCD, clear है, and its mass is m, having radius r. So as we know, total surface area of the shell is 4 pi r square. Hence, assuming the shell to be uniform one, so we have mass per unit surface area will be equals to this. Okay. Now let us try to calculate the moment of inertia of this given spherical shell. Clear? So here, for this, consider thin slice of the given shell lying between two planes KL and MN perpendicular to the diameter and situated at a distance of x plus dx respectively from the center. Okay, the slice is obviously a circular ring of radius pk, clear, and thickness km. Now here one thing you should keep in mind that km is not equals to pq which is equals to dx. Okay, now proceeding along, surface area की अगर हम बात करते हैं for this elementary ring, that will be equals to the circumference into thickness. Then what will be the circumference? 2 pi pk into its thickness, that is km. Okay, now if we join OK and OM, then consider angle COK which is equals to theta, then KOM will be equals to d theta. Clear? Now if we consider this triangle here, sin d theta will be equals to km upon OK, but d theta is very small, so we can say that sin d theta will be approximately equals to d theta, and from here we'll get the value of km which will be equals to OK dot d theta, and OK is r, so it will become r day dot d theta. Clear? Again in triangle OPK, PK will be equals to OK cos theta, and here OK is r cos theta. Clear? Similarly, we can define OP which is equals to OK sin theta, and it will be come out as x is equals to r sin theta. Clear? Now if we differentiate this equation, what will we get? Dx is equals to r cos theta dot d theta, where r cos theta is equals to pk. Here we have derived this term, so we'll put its value. So pk will be equals to dx over d theta. क्लियर है? नाउ जो हमने सरफेस एरिया के लिए डिस्कस किया था फॉर्मूला 2 पाई पी के डॉट के एम, अब हमारे पास पी के की भी वैल्यू है एंड वी हैव के एम ऑल्सो, तो हमने दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया. व्हाट विल वी गेट? 2 पाई आर डी एक्स. क्लियर? नाउ if we have to calculate the mass of the elementary ring, what will it be? Surface area into mass per unit surface area, and it will comes out to be m over 2r dot dx. So now we can proceed to calculate the moment of inertia of the ring about the axis AB. तो वो क्या हो जाएगा? Mass into radius. So this is the formula, and यहाँ पे हम लोग values put करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा पी के स्क्वायर क्या है? ओके स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. जब हमने इसको पुट किया और हमने लिमिट रखी माइनस आर टू आर, जब हमने उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करा, तो दिस विल व्हाट वी गेट, एंड दिस इज द फॉर्मूला of the moment of inertia of the spherical shell along its diameter. Now अगर टेंजेंट की बात करते हैं तो हम कोई भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे उस स्फेरिकल शेल में जो कि पैरेलल होगा डायमीटर से. ठीक है, जैसे कि हमने ये आर एस ड्रॉ कर दिया along this. ठीक है, तो
अभी अगर हमें कैलकुलेट करना है टेंजेंट तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम कंसिडर करेंगे एंड विल डायरेक्टली पुट इट इनटू द फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ डायमीटर प्लस mr स्क्वायर। तो ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर निकाल चुके हैं, प्लस mr स्क्वायर, तो इट विल बिकम 5/3 mr स्क्वायर। नेक्स्ट वी हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर को हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्फेरिकल रिंग्स का अगर मैं कॉम्बिनेशन कर दें तो एक सॉलिड स्फीयर जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैं एक मेथड बता रही हूँ, सेकेंड वन यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो विल डिस्कस द फर्स्ट मेथड। अबाउट इट्स डायमीटर हम कंसिडर कर लेते हैं ABCD जो है एक प्लेन सेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है विद सेंटर O। उसका जो मास है वो m है एंड इट्स रेडियस विल बी इक्वल्स टू r। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सॉलिड स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल M ओवर 4/3 पाई r क्यूब एंड विल बी इक्वल्स टू 3m 4 पाई r क्यूब। क्लियर है। नाउ अगर हम अगेन स्फेरिकल शेल की तरह यहाँ पे भी हम एक थिन स्लाइस कंसिडर करके चलते हैं KLMN, ठीक है, जो कि x डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और थिकनेस जो है उसकी वो dx है। तो ऑब्वियसली जो ये सर्कुलर डिस्क इसका जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, हैविंग थिकनेस dx। तो वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। अब सरफेस एरिया स्लाइस के लिए सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, होल स्फेरिकल शेल के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, तो पाई यहाँ पे स्क्वायर है तो इस वजह से ये आ गया। नाउ ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्लाइस। ठीक है, नाउ मास ऑफ द स्लाइस की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये वैल्यू पुट करिए, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द स्लाइस। नाउ अगर हम डायमीटर AB है इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्लाइस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DI विल बी इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ ये हमारे पास m आया है और ये r स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। तो दिस विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, उस स्लाइस के लिए बात कर रहे हैं हम, दैट इज वाई वी आर कंसिडरिंग DI। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें कंप्लीट स्फीयर का निकालना है तो हमें वहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो जब हम लिमिट पुट करके उसको इंटीग्रेट करते हैं तो व्हाट विल वी गेट दिस फॉर्मूला। क्लियर है। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट मेथड भी बताया हुआ है, यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑल्टरनेट मेथड ऑल्सो। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो वही अगेन सेम डायमीटर के परपेंडिकुलर पैरेलल हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया और वहाँ पे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई किया। ये हमारे पास टेंजेंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। क्लियर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर ऑफ अ थिक स्फेरिकल शेल, आई गेस ये आप असाइनमेंट में ऑलरेडी कर चुके हैं। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क इन योर ऑफलाइन क्लास। ओके।